Good morning, children. Let's do the remaining part of our chapter number 1 from the reader book. Okay, so we saw that there was a lion who was eating anyone who came his way in the jungle. Alright, so everyone was very sad, and so they all collected. All of them held a meeting, and they all decided that one by one, every day, one animal will go to the lion themselves for his meal. Okay, so then later on, one by one, animals went and their families were really sad. Let's see today what happens after that. One sunny morning, it was turn on the jackal. His entire family came to say their final goodbyes. Like all the other animals, he also did not want to go to the lion, but he left all his friends and family members half-heartedly. Read till here. इसका मतलब क्या है? वन सनी मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? When the sun is there, it is shining bright. Okay, that's a sunny morning. It was turn of the jackal. It was jackal's turn to go. His entire family came to say their final goodbyes. Their final goodbyes means, you know, to say the goodbye at the last time. For the last time, they were saying goodbye to the jackal. All the family members came to say goodbye to him. Okay. Like all the other animals, the jackal also didn't want to be eaten. उसको भी नहीं जाके lion के सामने जाना था ताकि वो उसे खा ले. He also didn't want to go, right? So, but he had to leave. उसको जाना ही पड़ा, and he left the family members half-heartedly. Half-heartedly मतलब आधे मन से. Okay, half-hearted मतलब आधा दिल. Correct? आधे दिल से मतलब half-heartedly. Okay, so he left, but उसका मन नहीं था जाने का. Alright, let's read ahead. As he was walking towards the lion's den, he came up with an idea. He deliberately walked very slow and reached late. Deliberately का मतलब होता है जानबूझ के. Sorry. Deliberately का मतलब होता है जानबूझ के. Okay. On purpose. Deliberately का मतलब होता है knowingly या फिर on purpose, यानी कि purposefully वो धीरे धीरे गया. He walked very slowly. लिखा है walked very slowly and reached the lion late. और lion के पास जानबूझ के लेट पहुंचा क्योंकि उसे एक आइडिया आया था. And according to that idea, वो बहुत धीरे धीरे चल के गया. जानबूझ के वो बहुत धीरे धीरे चल के गया. Alright, the lion was hungry and hunger had made him angrier than usual. हमने पढ़ा था फर्स्ट पेज पे कि लायन वॉज वेरी फेरोशियस, यानी कि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा फेरोशियस था. बट क्योंकि जिकॉल लेट पहुंचा था, इट मेड हिम इवन मोर एंग्रियर, एंड बिकॉज ही वॉज हंग्री ही वॉज इवन मोर मैड. राइट, मैड एंड एंग्रियर मीन्स टू हैव एंगर इन द हेड, टू फील वेरी एंग्री. ओके, यूजुअल मीन्स आम तौर पे जो होता है उसको हम यूजुअल कहते हैं. या राइट, वी से ना यूजुअली आई डोंट स्लीप दैट अर्ली. दैट मीन्स जनरली मैं इतनी जल्दी नहीं सोता, हमेशा मैं इतनी जल्दी नहीं सोता. राइट, सो यूजुअली जितना लायन फिरोशियस था उससे भी ज़्यादा वो एंग्री था आज, क्योंकि जिकॉल लेट पहुंचा था. ओके, लेट्स रीड अहेड. By the time Jekyll arrived, the lion was ready to eat him up at once. Eat him up at once का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? यानी कि जब तक जेकॉल पहुंचा तब तक लायन was so hungry and so ready to eat that he wanted to eat the jackal at once. यानी कि वो उसको एक बार में ही खा जाना चाहता था.
जैसे हमें ज़्यादा हंग्री होते हैं, हम ज़्यादा, मम्मी खाना देती है तो ऐसा लगता है ना एक बार में ही सारा खाना खा जाओ, बिकॉज यू आर सो हंग्री. सो वैसे ही लायन वॉज सो हंग्री दैट ही वॉन्टेड टू ईट द jackal at once. Okay, the jackal very respectfully apologized. अपोलोजाइज का क्या मतलब है चिल्ड्रन? अपोलॉजी का मतलब होता है, अपोलोजाइज्ड बना है अपोलॉजी से. ओके, APOLOGY, अपोलॉजी से बना है ये वर्ड अपोलोजाइज, और इसका मतलब होता है माफ़ी मांगना. ओके, माफ़ी मांगने को हम इंग्लिश में अपोलोजाइज कहते हैं. सो ही अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट. नाउ see the sentence here. The jackal very respectfully apologized for being late. तो पहले ये दिया गया है कि क्या किया एंड क्यों किया. ओके, so that is the sentence formation. Please look at it nicely, and that's how you will follow your sentence formation. Okay, for being late, I informed by him that he had set off with two of his friends as part of the lion's meal. Now, set off का मतलब निकला था, जैसे घर से निकलने को कहते हैं चल, राइट, वैसे ही सेट ऑफ होता है. ही हैड सेट ऑफ मीन्स वो घर से निकला था विथ टू ऑफ हिज फ्रेंड्स, यानी कि अपने दो दोस्तों के साथ, एज अ पार्ट ऑफ हिज लायन मील्स, एज द पार्ट ऑफ लायंस मील. तो उसका मतलब हुआ कि द jackal very respectfully apologized for being late and informed him, and उसने लाइन को इन्फॉर्म किया कि मैं अपने दो दोस्तों के साथ निकला था घर से आपके खाने के लिए. ओके, हाउएवर, लेकिन, हाउएवर इज लेकिन, ऑन देयर वे they were attacked by another lion. Now उसने कहानी बनाई मुझे कॉल ने कि he told him कि सर मैं तो आ रहा था दो लोगों के साथ, दो और जैकॉल्स के साथ आपके खाने के लिए, but however on my way we were attacked by another lion. Oh my god, who said that he was the king of their jungle. So now what he told lion is already angry. Okay, you read that lion was already angry. So jackal told him, and when we were coming we were attacked by another lion, and the lion said that he was the jungle's king. Okay, he said he was the king. The other lion had eaten both his friends. और उसने बोला कि जो दूसरे लायन ने उनको अटैक किया था उस लायन ने उसके बाकी दोनों फ्रेंड्स को खा लिया. Okay, it was with great difficulty that he managed to escape. Great difficulty means बहुत मुश्किल से. Great difficulty means बहुत मुश्किल से. Manage means उसने जैसे तैसे मैनेज किया, जैसे तैसे वो निकल के आया. ओके, बहुत डिफ़िकल्टी के साथ उसने मैनेज किया टू एस्केप. एस्केप का क्या मतलब है? बच के आने को एस्केप कहते हैं. ओके चिल्ड्रन, जो भी वर्ड्स का मतलब मैं बताती हूँ उसको प्लीज़ आप लोग कहीं लिखा करिए, सो दैट जब आप वापस रीड करेंगे इस चैप्टर को तो आपको पता चलेगा कि इन सब वर्ड्स का क्या मतलब है. ओके, प्लीज़ 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 राइट देम समवेयर. ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट पेज. तो अभी हमें समझ में आया कि अभी तक हमने क्या पढ़ा. जब जैकल अपने घर से निकला तो ही वॉज वेरी सैड, ही डिडंट वांट टू गो टू द लायन. ऑलराइट, देन उसको एक आइडिया आया दैट वो धीरे धीरे चल के गया लायन के पास, एंड उसने लायन को बताया that lion, I was coming to you with two of my friends. I had set off with two of my friends, but there was another lion in our way who said that he was the lion of our jungle, and he attacked us and he ate two of my friends, and somehow I managed to
escape from there. Now let's read ahead what's ahead. The lion was ferocious. On hearing this, उसको बहुत गुस्सा आया जब उसने ये सुना कि कोई और भी लायन है जो कहता है कि वो इस जंगल का किंग है. He ordered the jackal to take him to the place where the other lion was. तो उसने बोला कि जैकल तुम मुझे उस जगह लेके जाओ जहाँ पे वो दूसरा लायन है, जहाँ पे तुमने उस दूसरे लायन को देखा था. ओके. The jackal took him to a well. The jackal took the lion to a well. Well means a कुआं. कुएं को हम well कहते हैं. ये देखो चिल्ड्रन, इस पेज पे ये डायग्राम बना हुआ है ना. गो टू दी अदर पेज एंड सी दैट डायग्राम, पेज नंबर 2 पे. वो उसको एक वेल के पास लेके गया. ठीक है. जैकल जो था वो लायन को एक वेल के पास लेके गया. लायन ने क्या देखा? लायन ने क्या देखा कि वहाँ तो कोई लायन था ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक वेल था. The lion saw his reflection in the water and thought it was the other lion. अब इस लायन ने इस वेल के अंदर देखा यहाँ पे, तो वेल के अंदर तो पानी होता है, करेक्ट. तो उसने देखा पानी में अपना रिफ्लेक्शन. हम जब पानी में देखते हैं तो हमारा फेस दिखाई देता है, राइट. तो उसको भी अपना फेस दिखाई दिया और लायन ने सोचा कि ये वो दूसरा वाला लायन है जिसने बाकी दोनों जैकल्स को खाया है, जो कि उसके खाने के लिए आए थे. तो जैसे ही उसने उनको अपनी रिफ्लेक्शन देखी, उसको लगा कि वो दूसरा लायन है. He was so angry that without thinking he pounced at his own reflection. Pounced का क्या मतलब है? कूदना, जंप करना, ओके, या फिर अटैक करना. सो उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने रिफ्लेक्शन पे ही जंप मार दिया. He struggled for some time but finally drowned. उसने थोड़े टाइम के लिए जो स्ट्रगल किया पानी में, बिकॉज उसको स्विमिंग तो नहीं आती थी, है ना. पानी में गिर गया था. वेल काफ़ी डीप होता है. डीप मतलब डीप इनसाइड, लेंथ में ज़्यादा लेकिन नीचे की तरफ. ओके, दैट्स कॉल्ड डीप. और लेंथ में ज़्यादा ऊपर की तरफ को हम क्या कहते हैं? हाई. जैसे कुतुब मीनार हाई होती है, लेकिन एक वेल डीप होता है. ओके, ऑलराइट. तो द वेल वॉज डीप, सो ही स्ट्रगल्ड फॉर सम टाइम बट ही फाइनली ड्राउन. ड्राउन होने का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? ड्राउन मीन्स डूब जाना. डाइड बाय सफोकेटिंग इन वाटर. सी हियर, the clever jackal's intelligence had saved all the other animals of the forest. They were very thankful to him and lived in the forest peacefully ever after. यानी कि जो जैकल का आइडिया था कि वो लायन को ले जाएगा झूठी कहानी सुना के वेल के पास और उसको पानी में डुबा देगा, वो उसका प्लान कामयाब हुआ. ओके, ही वाज सक्सेसफुल. एंड because of that all the other animals in the forest were thankful to him. Thankful means वो उसका धन्यवाद कर रहे थे कि thanks to the jackal that we all got saved. Alright, so that's the end of the story. Then after that, after the lion died, all the animals lived happily ever after in the jungle, in the forest. That's the end of story. So this is a story which is taken by the Panchatantra. Okay, it's Panchatantra is an age-old collection of stories, animal stories that have been believed to be written by Sanskrit scholar Vishnu Sharma. ये विष्णु शर्मा ने लिखी थी और इनका एक मॉरल होता है पंचतंत्र स्टोरीज का. राइट. सो यहाँ पे हमारा मॉरल क्या है कि आप किसी भी सिचुएशन को सरेंडर तो कर सकते हो, बट यू कैन ऑलवेज ऑल्सो फाइट इट. देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट टू एनी सिचुएशन. एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सल्यूशन. सो यहाँ पे भी जो फॉरेस्ट के एनिमल्स की प्रॉब्लम थी कि लायन उनको ईट कर रहा है, उसका भी सल्यूशन था. राइट.
सो हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, एंड विथ योर इंटेलिजेंस यू कैन fight any problem. Alright, so that's the moral of our story. Let's do the exercise now. Fill in the blanks using words given in the help box. Children, यहाँ पे ये स्टोरी का समरी दिया है, ठीक है. दिस इज स्टोरी समरी. समरी मीन्स जो भी हमने पढ़ा उसको कम शब्दों में दिया है नीचे, ठीक है. यहाँ पे जो ब्लैंक्स है ना, आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या आएगा. एज यू विल रीड द स्टोरी, you have to start reading the chapter, and as you will read you will come across these sentences. Okay, so you will have to see and fill in the blanks. तो आपको मैंने स्टोरी समझाया है ना, आपको स्टोरी के हिसाब से यहाँ पे fill in the blanks करनी है. Alright, let's see the next one. Answer the following questions in 1 or 2 sentences. Let's do this, and that सिर्फ यहीं तक करना है हमें. चिल्ड्रन कॉम्प्रिहेंशन यू विल डू एज होमवर्क. आई एम गिविंग यू आंसर्स एंड देन यू हैव टू राइट इट. ओके. Okay, first question. What kind of a king was Lion? Lion was a ferocious king. Lion was a ferocious king. What did the animals of the forest decide to do? They decided that they will go one by one to Lion for his meal. What did the jackal do when it was his turn? He left the home half-heartedly, and he made a plan to get rid of Lion. Jackal made a plan to get rid of Lion. Rid of means उससे छुटकारा पाने के लिए. ओके, टू गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना. ओके, तो Jackal made a plan to get rid of the lion. What excuse did Jackal give for reaching late? Jackal said that he, along with his 2 friends, was attacked by another lion who told himself to be the forest king. क्या मतलब हुआ उसका चिल्ड्रन? Jackal said that he, along with his 2 friends, यानी कि Jackal ने कहा कि वो along का मतलब क्या होता है, के साथ, with his 2 friends was attacked by another lion. कि वो उनको अटैक हुआ था. Who told that he was the forest king? Now that he told the lion that there was another lion who attacked them, and he said that he was the king of the forest. Okay, that was the excuse which Jackal gave to the lion when he reached to him late. Next one. What was the lion's reaction to Jackal's story? He got, or you can write, the lion became even more
ferocious than before. That's it. That should be your answer. Last one. How did the jackal save the lives of the animals of the forest? You will write the jackal, with his intelligence, thought of a plan to get rid of lion and was successful. Thus, he saved everyone's life. ओके, ये आपका आंसर होगा. Alright. So now the last question, C1. Write the qualities of the following animals as they have been described in the story. Children, यहाँ पे आपको 3 नाम दिए हैं एंड आपको इनकी क्वालिटीज़ लिखनी है. आप चैप्टर रीड करेंगे और आप उसमें से फाइंड आउट करेंगे कि क्या क्या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज़ किए गए हैं इन तीनों के लिए. लाइक एग्जांपल देती हूँ, लाइन के लिए फेरोशियस यूज़ किया गया है, आउल के लिए वाइज यूज़ किया गया है कि वो वाइज था. जिकॉल के लिए इंटेलिजेंट यूज़ किया गया है. ठीक है, तो इसी तरीके से आप और वर्ड्स फाइंड आउट करेंगे अगर हैं तो इसके अंदर, एंड देन यू विल राइट इट इन दी ब्लैंक. ऑल्सो चिल्ड्रन, क्वालिटीज़ को इस तरीके से लिखने को हम कहते हैं कैरेक्टर स्केच, यानी कि आप उसके कैरेक्टर के बारे में लिख रहे हैं. तो अगर एग्ज़ाम में आता है कि राइट द कैरेक्टर स्केच, तो आपको ड्राइंग नहीं बनानी होगी. कैरेक्टर स्केच का मतलब होता है कि आपको इसके कैरेक्टर के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें बतानी है. ठीक है, सो रिमेंबर दिस फॉर योर एग्ज़ाम. इट विल कम इन द एग्ज़ाम, आई एम टेलिंग यू. ऑलराइट, that's it for today, children. Please do it, and if there is any problem, you can please ask me. Thank you so much.